Hi Navneeti, welcome to Filmy Beat. Firstly, talking about astrology, I would like to know about your journey, how you started, when you thought about being an astrologer. क्या कुछ कहना चाहोगे? Like, what do you have to say? First of all, namaste to all the audience, all your viewers, and to you, and thank you for having me here. मेरी अगर जर्नी की बात करें तो मेरी जर्नी बहुत ही डिफरेंट जर्नी रही है फ्रॉम अ गर्ल हु वाज बॉडी शेम्ड एट हर चाइल्डहुड एंड बीइंग टोल्ड दैट नहीं कर सकते हो अपने लाइफ में एंड फ्रॉम देयर to having my own crown of Mrs. Universe Asia Queen 2019 and being a future fortune teller and meditation guru. तो मेरी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही. मुझे पूरी अपनी जर्नी के थ्रू ये समझ में आ गया कि लाइफ इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ सिंक बिटवीन योर अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड. तो ऐसे ही बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए जहाँ पे लोगों ने मुझे बोला कि कुछ नहीं कर सकते, आप बिल्कुल यूजलेस हो. एंड फिर when I was carrying my younger daughter, I have gone through some medication which reacted on my body. Then my weight became 40, from 48 to 89 kgs, and my muscles were completely damaged. I was like bedridden. I was declared clinically depressed. Clinical depression was going on. Asthma, I had asthma issues, lot of muscles issues. And then I got into meditations and all these things that transformed my life. And I was not the person I am today. I used to be like really a different kind, Mm-hmm. जिसमें मुझे बहुत I always used to get shivers when people used to come and talk to me. I used to run away from people because till that time मुझे कभी भी अपने साथ फ्रेंड करने का चांस नहीं मिला. Meditation or astrology, graphology, numerology, healings, that gave me power to become friends with my own self. So this is my journey. All right. Very inspiring journey you have. Anyways, I would like to know, moving forward, as you said about your journey, I would like to know what is Tuesday Tales like. Can you just give some idea of your Tuesday Tales? What you basically do on Tuesdays? Okay, so Tuesday Talk Tales is a talk show which I have started on my platform, that is my Facebook handle and my YouTube channel. So the first season was for young achievers. जो 18 साल से कम के बच्चे हैं, उन्होंने जो अपनी लाइफ में अचीव किया है. कुछ बच्चों से मैं मिली जो ड्यूरिंग दिस कोरोना पीरियड दे हैव कलेक्टेड फंड्स. उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया कुछ अनप्रिविलेज बच्चों को ताकि वो पढ़ाई उनकी रुके नहीं. कुछ बच्चे हैं जिन्होंने इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है. ऐसे हमने एक फर्स्ट सीजन किया था. नाउ वी विल टेक 18 प्लस, ऑल द किड्स, all the people who have done something in the society, and that is the platform I've created so that it gives motivation to the person who is doing it and to the others, to my viewers. So that is what Tuesday Talk Tales is all about. And I have also launched a meditation marathon during lockdown, because that's completely free. I conduct meditation sessions on Zoom, and the person who I mean, all of you viewers are also invited to join me for that. They have to go on my page. My page is my name only, and they can register for it, and it's completely free because I feel from my journey I have learned that meditation works on your unconscious mind, and it helps you to, it empowers you to become a better person, better version of your own self. जैसे मैंने बिग बॉस में रुबीना को भी ये बोलते हुए सुना है कि मैं बहुत डिस्ट्रक्टिव थी. जब से मैंने मेडिटेशन प्रैक्टिस किया है शुरू, तब से आई हैव बिकम अ बेटर पर्सन, एंड द so it really transforms people. So that's why I started, because कोरोना के टाइम बहुत लोगों को स्ट्रेस था, बहुत लोगों के जॉब्स चले गए, बिजनेस खराब हुए. तो उस स्ट्रेस को डील करने के लिए ये मेडिटेशन लॉन्च हुआ है. और आई वुड लाइक ऑल द व्यूअर्स आल्सो टू जॉइन मी.
So that will Wow, be great for amazing, everyone. amazing initiative you had done, and that's great because usually no one does it for free. And but since like you have implemented this is like amazing initiative. And moving forward, as you said, जैसे कि अभी आपने बिग बॉस की बात कर ही ली है about Rubina. So ये season बिग बॉस आप कितना follow कर रहे हो? And what do you have to say? You know, since being a tarot card reader, what do you have to say कि कौन से contestant का क्या बताता है like उनका भविष्य? इस साल मैं एक्चुअली मैं बहुत फॉलो कर रही हूँ बिग बॉस. आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज जनरली मैं बहुत मिस कर देती हूँ, बट इस साल आई एम इन टू यू नो आई एम समटाइम आई व्हेन आई एम फ्री आई वॉच लाइव फीड आल्सो. सो वैसे बोल रहे हैं टीआरपी थोड़ी कम है इस बार एंड ऑल दैट स्टफ. आई डोंट नो, बट आई एम फॉलोइंग इट लाइक फ्रॉम एवरी एपिसोड. तो और मेरे जो फेवरेट कंटेस्टेंट है, जैसे मैंने बोला, रुबीना मेरे को बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज शी हैज अ कंट्रोल ऑन हर यू नो व्हाट शी टॉक्स, एंड उसको पता है कि कितना बोलना है और कहाँ पे बोलना है. यू नो, शी डजंट जस्ट पिक अप एनीथिंग एंड एवरीथिंग. शी इज ऑल्सो हेल्पफुल ऑल्सो टू अदर्स. कोई उसके पास फ्रेंडशिप, हाँ ये बात है कि वो खुद सामने से उठ के नहीं जाती है फ्रेंडशिप लेके दूसरों के पास, बट उसके पास अगर कोई आता है तो वो बहुत अच्छे से उसको वेलकम करती है. लोग उसको सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं, बट आई फील दैट्स अ एटीट्यूड. यू नो, एवरीवन हैज अ डिफरेंट एटीट्यूड टू डील विद थिंग्स. दैट्स हर एटीट्यूड. आई फील सेम काइंड. मैं भी सामने से जाके किसी के पास फ्रेंडशिप नहीं करूंगी, बट मेरे पास कोई आता है तो आई एम लाइक रियली ओपन टू वेलकम न्यू पीपल इन माई लाइफ. तो और अगर न्यूमरोलॉजी की पहले बात कर ले, न्यूमरोलॉजी से भी अगर मैं देखती हूँ तो रुबीना के काफी नंबर स्ट्रांग है और राहुल वैद्य के भी इक्वली नंबर स्ट्रांग है, और इन दोनों की फैंडम भी अगर देखें तो बहुत स्ट्रांग है. मतलब दे गिव ऐसा कट टू कट उनको एक दूसरे को कंपटीशन. तो इन दोनों में से ही मेरे हिसाब से तो जो मैंने न्यूमरोलॉजी की कैलकुलेशन करी है, दोनों का 2 का पर्सनल ईयर चल रहा है. 2 ऐसा रहता है जो मून की पावर होती है. मून इंडस्ट्री में हाईलाइट होने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है. तो मून मनी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ऑब्वियसली जो बिग बॉस जीतेगा उसको पैसा भी मिलने वाला है. तो इसलिए इन दोनों का ही पर्सनल नंबर 2 आता है. जो राहुल वैद्य का है वो थोड़ा 11 से 2 आता है, जो मास्टर नंबर होता है, और रुबीना का आई थिंक किसी और नंबर से 2 आता है. तो इसलिए दोनों ही इक्वली हैं, बट यस मास्टर नंबर है राहुल के भी कार्ड्स में. तो लेट्स सी, एक इनमें से ही मेरे हिसाब से एक विनर बनेगा. तो जैसे अभी मैं तो ये बोलूंगी, जब मीडिया भी गया था तो उन्होंने बोला था कि राहुल वैद्य रुबीना की फ्लाइट में चल के आगे बढ़ रहे हैं, बट मैं यहाँ बोलना चाहूंगी कि निक्की तुम बोले रुबीना के फ्लाइट में बैठ के आगे बढ़ रही है अभी तक, तो मुझे ये लग रहा है बिकॉज Right. उनको अभी इतना जो सपोर्ट मिल रहा है वो रुबीना की वजह से ही मिल रहा है. करेक्ट. एंड इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि अली गोनी का क्या कहता है यू नो फॉर्चून, तो उनके बारे में आपको क्या कहना है? उनके कार्ड्स क्या बताते हैं? अली गोनी का जो कॉम्बिनेशन है वो 25 फेब है. जो 7 और 2 का जो कॉम्बिनेशन है वो, जैसे वो बहुत इमोशनल है, वो दिखता है उनको उनको एंगर इश्यूज हैं, बिकॉज 2 और 5 आपस में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता. 25 में 2 और 5 आते हैं, वो इमोशनल इश्यूज देता है, वो एंगर इश्यूज देता है इंसान को, और वो हमें बहुत प्रोमिनेंटली दिखता है कि वो उनको एंगर इश्यू है. और हाँ, अगर कोई जब जैस्मिन गई थी और वो कितना रोए थे, तो ऐसा बॉयफ्रेंड आई थिंक ऑल द गर्ल्स विल ड्रीम फॉर दैट काइंड ऑफ बॉयफ्रेंड, जो इतना प्यार उसको दिखाता है और पैम्पर करता है उसको. और अभी भी वो नहीं है तो भी जैस्मिन की बहुत बार बात करते हुए दिखता है. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है. बट हाँ, अगर टॉप 5 में कहो तो अली गोनी को देखती हूँ, बट विनर थोड़ा सा डिफिकल्ट है उनके लिए. टॉप 5 में वो बहुत इजीली आ जाएंगे. ओके. और वो एंड जो जैस्मिन और अली, इन दोनों की केमिस्ट्री के बारे में क्या कहना है? इनका आपको कैसा लग रहा है? एंड व्हाट इनका भविष्य क्या कहता है? द थिंग इज, अगर जैस्मिन और अली की बात करें तो जो अली है वो, उसका जैसे मैंने बोला 7 है उसका नंबर 25 से.
तो ऐसे लोग बहुत जो काम करते हैं बहुत शिद्दत से करते हैं। मैं इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैं भी 7 नंबर हूँ, तो मुझे पता है कि अगर वो प्यार करेगा तो बहुत दिल से करेगा। और जैस्मिन भी नंबर 1 आता है, 28 है उसका, तो 1 है तो उसको भी मतलब वो भी बहुत ऑनेस्ट लोग होते हैं। रिलेशनशिप ऐसे ही कंटिन्यू कर, नॉट गेटिंग मैरिड और समथिंग,